Nation. Now I'm Pradeep Nambiar, and this we talk about BMC elections 2026. In every system, there has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. If the economic and political systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. We welcome Rani Dwivedi Nigod from Ward number 13, the BJP candidate. Rani ji, welcome to the show. Namaskar, Pradeep Namaskar, namaskar. Bajaj Saab wanted to be a part of the show, but you wanted to have it earlier. So he's going to come. बिना बजाज साहब के आप मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हो क्या करें आपने कहा कि जल्दी करो मुझे you got some other appointment so we had to get you but the internal survey that we did Rani Nigod ji you are the sure winner you are winning from ward number 13 that's what the internal survey when we conducted Nation Now we found out that you're a winner talk about your ward number 13 Rani Dwivedi Nigod ji. See, Pradeep ji, you know me better, I think, from Palghar to Vasai Virar and now Mumbai. Yes. So, ward number 13, I am the candidate for Bharatiya Janata Party and Mahayuti. Yes. And I am assuring you that we work for the development and we are here for developing all my entire ward with the good norms like education, women's safety, women's empowerment, many things which I wanted to do in this ward. Already, before me, the representative is Mr. Vidyarthi Singh. He did excellent work in this ward. So, looking forward to do better for this area. Vidyarthi Singh was the earlier cooperator from the Bharatiya Janata Party. That's what you say, Rani ji? विद्यार्थी सिंह जी हमारे यहाँ के सिटिंग नगर सेवक थे उनका काम बहुत अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी आपको पता है जन सेवा करती है तो हम पद पे रहे बीएमसी इलेक्शन लेट हो या जो भी हो हमारे नगर सेवक सभी ग्राउंड पे काम कर रहे थे विच यू कैन सी एंटायर मुंबई अब मुंबई का नागरिक बीएमसी का इलेक्शन लड़ रहा है हम तो कैंडिडेट है बट बीएमसी का इलेक्शन मुंबई के लिए मुंबई की जनता लड़ रही है You know, Rani ji, Devendra Fadnavis ji is absolutely confident that out of 29 corporation, 27 mein Mahayuti is going to win, and he said BJP is going to be the majority beneficiary. Now, coming back to your area, Rani ji, we know that you are very hardworking. आप बहुत hardworking हैं, आप sports में भी आपका बहुत contribution है, and Devendra Fadnavis ji has acknowledged that publicly many times. Now, area में, ward number 13 में, what are the issues that you see? भले विद्यार्थी सिंह जी थे बट स्टिल देयर आर सम इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड रानी जी आप क्या देखे वार्ड 13 में देखिए वार्ड नंबर 13 जो है ना ये ब्लेस्ड वार्ड है यहाँ 30 साल से जो जनसेवक है वो तो है ही हमारे पिछले खासदार माननीय गोपाल शेट्टी जी है हमारे एमएलए है अभी पीयूष गोयल जी है इन सबका जो काम है ना वो वहां दिखता है जब मैं वहां घूम रही हूँ तो अगर इफ आई एम गोइंग इन स्लम ऑल्सो वहां का भी पाथवेज इतना क्लीन है कि आप उसमें बिना कुछ सोचे समझे बैठ सकते हैं मतलब जनता कितना अवेयर है अगर किसी ने कोई चीज बना के दी है तो उसको वहां मेंटेन रखा है छोटा मोटा पानी का एक आध जगह इशू छोड़ दो तो वार्ड में कोई भी तकलीफ नहीं है हाँ सारे रोड सीमेंट कॉन्क्रीट हो चुके हैं हार्डली 2 roads आर लेफ्ट एंड एंटायर वार्ड is like people welcome me कि मैडम आपकी पार्टी ने काम किया आपने काम किया हम दोबारा आपको यहाँ देखना चाहते हैं ऐसा बहुत जगह नहीं होता है लेकिन ये 13 नंबर वार्ड में ये स्थिति है कि सामने से जनता हमें बोलती है दोबारा आप आओ You know, Rani ji, Gopal Shetty ji is very close to us too. I mean, we admire the work that he done. He was a great leader, Gopal Shetty ji, and we see that he's totally with you to see that you're going to win. Now, how see Gopal ji का कितना contribution था? Because he was a workaholic, Rani ji. थोड़ा गोपाल जी के कंट्रीब्यूशन देखिए भारतीय जनता पार्टी की जब मैं 2004 में कार्यकर्ता हुई तो मैंने शुरुआती गोपाल भाई के संघर्ष को देखते हुए कि हम सत्ता में नहीं थे हमें सत्ता मालूम नहीं थी हमें संघर्ष करके काम करना मालूम था और संघर्ष कैसे करते हैं काम कैसे करवा के लेते हैं जनता के बीच कैसे जाते हैं और उनके विषय कैसे रखते हैं चाहे वो कोई भी हो उससे वो कितना भी बड़ा प्रशासन का बड़ा अधिकारी हो उससे अगर जनता का काम नहीं हो रहा है तो कैसे करवा के लेना है आप तो जानते हैं गोपाल भाई कभी भी घर में नहीं बैठने वाले लीडर है टिल टुडे ही इज विथ मी इन मॉर्निंग आल्सो एंड ही इज एंटायरली ट्रैवलिंग टू ईच वार्ड
तो ये तो उनकी खासियत है ना, हम उन्हीं से सीख कर कार्यकर्ता बने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड लेवल का नेता है वो। और फडणवीस साहब ने एक चीज कहा कि 7 इयर्स के अंदर मैं मुंबई को स्लम फ्री करूंगा। आई हैव गॉट एन एम्बिशन, मुंबई इज गोइंग टू बी स्लम फ्री इन 7 इयर्स। नाउ व्हाट इज द स्लम पोजीशन? आपके क्षेत्र में स्लम का क्या सिचुएशन है? हाउ डू यू सी? मैक्सिमम डेवलपमेंट चल रहे हैं, मैक्सिमम रीडेवलपमेंट चल रहे हैं, हार्डली सोसाइटीज आर लेफ्ट, मैक्सिमम एसआरए कंप्लीट होकर लोग शिफ्ट हो गए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स अभी शुरू है और वो बहुत स्पीड में शुरू है। और आपको पता है कि जो जनप्रतिनिधि बोरीवली में काम करते हैं वो मुझे नहीं लगता किसी को छोड़ते हैं। ऑन द टाइम we will deliver the homes to each and every citizen. Already homes are delivered and the other projects are going on and I think soon it will be delivered. So slum free तो ये 13 नंबर वार्ड तो slum free हो जाएगा, इसका 101% गारंटी है। और रानी द्विवेदी जी, बात यह है कि ऑपोजिशन स्पेशली द कांग्रेस, उनका आलोचना है कि रोड देखो कितना खराब है, मुंबई की रोड्स आर बैड, पूरे खड्डे खोद खोद के भले आप कंक्रीटाइजेशन की बात कर रहे हो, 6,006 और 6,600 crores have been spent on that, but the roads are bad. Now how are the roads where your constituency is concerned? आपके constituency में roads की हालत क्या है? अभी आप मुझे पूछ रहे हैं कांग्रेस का, तो मैं बता रही हूँ कि मेरे वार्ड में तो उनको कैंडिडेट ही नहीं मिला है। नहीं मिला। So in my ward the position is very good. I request you within 2-3 days you come to my ward, come with me, we'll go together in rally and see what the development is there, how the people are staying and how they appreciate the Bharatiya Janata Party every time. दूसरा एक प्रॉब्लम है कि वाटर सप्लाई। इन मेनी अदर वार्ड्स हमने देखा कि वाटर सप्लाई इज अ बिग प्रॉब्लम। कई एरियाज में, जैसे आपने कहा आपके एरिया में तो स्लम्स बहुत रीडेवलपमेंट के फेज में है, फाइनल रीडेवलपमेंट, दे आर ऑल मूविंग आउट, बट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वाटर सप्लाई? बिकॉज मैक्सिमम हमने वार्ड्स में देखे वेरी स्लम एरियाज, दे हैव बिगेस्ट कंप्लेन है कि वाटर इज हार्डली कमिंग, हमको पंप के इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्लीन वाटर नहीं आ रहा। हाउ डू यू सी, हाउ यू गोइंग टू सॉल्व दिस? इज देयर एनी प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इफ देयर इज, हाउ यू गोइंग टू सॉल्व इट? रानी जी। See, water supply is very good in our area at least. Other than that, the Mumbai BJP always in ground to provide the all facility. आपको पता है कि BMC में सत्ता में कौन बैठे थे और किस तरह से राज चल रहा था। Now we will win and we will see how it will be work on it. And in my ward there is not such any maximum complaint, hardly 1 or 2. That is also in redevelopment area. But हाँ, हमारा महापौर बैठेगा, हमारी सत्ता आएगी, जो भी छोटे छोटे इश्यूज है, बिकॉज एवरी सिटीजन नीड वाटर फैसिलिटी इज द फर्स्ट फैसिलिटी एंड टॉयलेट्स व्हाट इज सेकंड फैसिलिटी, gutter should be clean, road should be proper, these all are the common facility which मुंबई कर का ये बोलते हैं ना, ये राइट है कि उनको मिलना चाहिए, उनका अधिकार है, तो वो हम सब अच्छे से दे रहे हैं और आगे और अच्छे से देंगे। एनक्रोचमेंट ऑफ रिक्रिएशनल स्पेसेस, ये पूरे मुंबई में बहुत बड़ा इशू है। यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, यू आर अ स्पोर्ट्समैन, अ स्पोर्ट्स वुमन, एंड आपका इंटरेस्ट बहुत सारे स्पोर्ट्स में। मुंबई के डेफिनेटली रिक्रिएशन प्लान्स बहुत जबरदस्त है कि वॉकिंग स्पेसेस हो जाए सीनियर सिटीजन के लिए, मिडिल एज लोगों को वॉकिंग स्पेसेस है। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन ये एरिया? आपने किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया a need to remove encroachments in walking spaces या recreation area? किस प्रकार से आपने आइडेंटिफाई किया and what is the solution there? See, already redevelopment is going on in my area and there was a RGPG, reservation plots are there, and soon it will be resolved because already the buildings going to be structured और अब उसमें जो reservation part छूटे हैं उन पार्ट्स में हम, जैसे गोपाल भाई ने बोरीवली वेस्ट में ग्राउंड्स बनाए हैं, वैसे ही आप बोरीवली ईस्ट में जल्दी बहुत अच्छा आरजीपीजी का डेवलपमेंट देखेंगे। another problem is schools. भले यूबीटी उद्धव बाला साहब ठाकरे के वक्त उन्होंने कहा कि वी आर मेकिंग मॉडल स्कूल्स, ऐसे स्कूल बने, टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्कूल्स, एवरीथिंग टेक्नोलॉजी विद इन द स्कूल। आपके क्षेत्र में कितने बीएमसी स्कूल्स हैं और क्या हालत है इन बीएमसी स्कूल्स का? क्या ये बड़े बड़े अपग्रेडेशन के बाद जो उद्धव जी कह रहे थे, आदित्य जी ठाकरे जी कह रहे थे, मॉडल स्कूल क्लासरूम्स, क्या वो दिखने को मिला है आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ स्कूल बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। Once I will win, I will definitely more upgrade the school because our BMC school is very good structured school, very good syllabus are there.
हाँ, अवेयरनेस की जरूरत है, उसे मेंटेन करने की जरूरत है, और उसको और अच्छा कैसे टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं, और इसकी मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी, बिकॉज यू नो माय पार्ट इज दैट ओनली टू स्पोर्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ, these all are the preferable for common man. You are winning, and you know dispensaries, hospitals हम लोग थोड़ा चर्चा किए थे earlier में, but how do you see is then because कांग्रेस और आपने कहा कांग्रेस के कैंडिडेट है ही नहीं आपके सामने, they don't have a candidate, but allegations हैं of dispensaries, hospitals in bad conditions, no facilities है dispensaries जो BMC के hospitals है, आपके क्षेत्र में कैसे आप देखते हो? मेरे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 120 बेड का एक हॉस्पिटल है विच इज नाइसली ऑपरेटेड. कोविड में वो बहुत लोगों को हेल्प किया है, अभी भी कर रहा है. इट्स प्रॉपरली वर्किंग हॉस्पिटल, अच्छे उसमें डॉक्टर्स है. और साहब जो लोग कोविड में घर में बैठे थे वो हमसे अगर सवाल पूछ रहे हैं तो आई थिंक आई टोल्ड यू, let us come in power, we will show how it will be work. You know, another thing, because Borivali is middle class, upper middle class area, और जहाँ आपने कहा कि you know slums is slowly moving towards redevelopment and people are moving out from slums, और फडणवीस साहब के जो ambition है 7 years में पूरे मुंबई को slum free करने का. Now along with that comes you know the parking spaces. Parking is essential because middle class, upper middle class, एक गाड़ी तो होगा ही सबका, and पूरे मुंबई में parking का एक बहुत बड़ा समस्या है. हाउ डू यू सी, आपने किस प्रकार से स्टडी की आपके वार्ड में, और क्या यू नो हाउ डू यू फाइंड सॉल्यूशन फॉर दैट, आप कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे इसके लिए? As of now, I have a Carter Road, all the Carter roads, 1, 2, 3, 4, 5. It's already the commercial area. People have their own shops, main shopkeepers, व्यापारियों का एरिया है, बहुत डिसिप्लिन है. लेकिन हाँ, आने वाले समय में पार्किंग के लिए वहां मैं कुछ करना चाहूंगी, मे बी मल्टी पार्किंग. मुझे अगर स्टेशन बनाने मिल जाता है बीएमसी से तो आई डेफिनेटली आस्क टू डेवलप दैट फॉर सिटीजन वेयर दे कैन पार्क देयर व्हीकल प्रॉपरली, और जो रोड का कंजम्पशन है वो कम हो. लेकिन अब तक भी वहां अगर आप देखेंगे तो लोग बहुत डिसिप्लिन में गाड़ी की पार्किंग करते हैं, और बहुत ज्यादा रोड पे एनक्रोचमेंट नहीं है. दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि द एयर क्वालिटी, हाउ डू यू सी इज बोरिवली अफेक्टेड बाय मैसिव कंस्ट्रक्शंस, जो आपने कहा कि एसआरए का जब बहुत जबरदस्त स्कीम्स चल रहे हैं, रीडेवलपमेंट के बहुत सारे स्कीम्स, हाउ इज द एयर क्वालिटी लेवल? बिकॉज भले पहले हम लोग इग्नोर करते थे एयर क्वालिटी इश्यूज को, बट आज दैट इज अ वेरी बिग एंड इंपॉर्टेंट इश्यूज वेयर पीपल आर कंसर्न्ड. एयर क्वालिटी किस प्रकार से है आपके क्षेत्र में? देखिए, यहाँ तो नेशनल पार्क पास है, तो नो डाउट डेवलपमेंट हो रहा है, बट डेवलपमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से हो रहा है. वो उसके नॉर्म्स को तोड़ के नहीं हो रहा है. पॉल्यूशन बोर्ड प्रॉपर उस पर ध्यान दे रहा है. उसके अलावा जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप कैसा ही कह रहे हो, रीडेवलपमेंट में हम जा रहे हैं, बिकॉज हमको स्लम फ्री मुंबई करना है, तो काम तो होगा, डेवलपमेंट तो होगा, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल करना ये भी हमारा ही काम है. और बोरीवली नेशनल पार्क के पास है, तो यहाँ का तो अभी तक सब ठीक ठाक है, अच्छा है. You know, you have been also a spokesperson. You have appeared on the Rajiv Bajaj show a couple of times, many times. आज करप्शन, अमित साटम जी ने कहा कि one of the biggest corruption is not the 2G scam, 5G scam और जो CWG scam. ये scam है BMC scam, जो UBT के वक्त पर हुआ. 25 साल में 3 लाख करोड़ के ऊपर जिस प्रकार से स्कैम है. As a spokesperson earlier used to appear on channels, how do you see, how do you rate this kind of अमित साटम के कमेंट को किस प्रकार से देखते हो, और आप लोकल लेवल में किस प्रकार से इसको आप कन्फाइन करने की कोशिश करेंगे? देखिए, हमने 2.5 साल की घर में बैठी सरकार देखी है. आप तब मेरे साथ टीवी चैनल्स में आते थे. yes. और मैं वैसे विरार पालघर की प्रभारी भी थी. yes, yes. कोविड में जिन्होंने कोविड के पेशेंट्स को नहीं छोड़ा, उनके डेड बॉडी बैग्स में भ्रष्टाचार कर दिया, खिचड़ी में भ्रष्टाचार कर दिया, आज वो अगर हमसे पूछते हैं तो मैं आज उनसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि एक ऐसा काम बता दे जो उन्होंने अपने कार्यकाल में मुंबई के लिए किया हो और वो पूरा हुआ हो. यू नो, दे ऑलवेज स्टॉप द वर्क एंड व्हाट दे हैव द रिजल्ट टू. आज अगर मुंबई की जनता उनसे पूछे
कि आपने क्या काम किया, तो मैं कहूंगी कि उन्होंने मेट्रो रोका, उन्होंने रोड रोका, उन्होंने कोस्टल रोड रोका, उन्होंने सिर्फ रोकने का काम किया। और भ्रष्टाचार जो किया वो आपके सामने है। आज से नहीं, अमित जी तो कह ही रहे हैं, अमित सडन जी कह रहे हैं, लेकिन लोकल आदमी भी बताएंगे कि ये कोविड में घर में बैठे थे और हम रोड पे थे साहब। दैट यू नो वेरी वेल। बिल्कुल रानी जी। एंड रानी जी, सेकंड थिंग इज ना, जिस प्रकार से यूबीटी उद्धव बाला साहब ठाकरे जी और राज ठाकरे साहब ने कहा कि फडणवीस साहब, नो बिकॉज यू आर स्पोक्स पर्सन, आपका नॉलेज वास्ट है, फडणवीस साहब वाज बोर्न इन नागपुर, हाउ विल हैव मच नॉलेज अबाउट मुंबई? ही इज बीन प्लेस्ड, मुंबई का ड्रीम्स, मुंबई के लोग, मुंबई के यहां पर जन्मे, उनको आइडिया होगा फडणवीस साहब। बट वी सी विपरीत 14 मेट्रो लाइन, जैसे अपने कोस्टल रोड, तरह तरह के। आप ये बताइए, बोलिए बोलिए। आप मुझे बताइए कि जो आदमी, मैं भी नागपुर की ही रहने वाली हूँ, वही मेरा भी जन्म हुआ है। विजन होना चाहिए, विजन, यू नो दैट यू नीड अ विजन। यू कैन फ्रॉम वेर एवर यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, कोस्टल रोड बनाना चाहिए, स्लम खत्म होना चाहिए, मेट्रो चलनी चाहिए, लाड़की बहन योजना चलनी चाहिए, लोगों को हर चीज की, मुंबई कर को जो जो चाहिए उसको मिलना चाहिए। ये विजन अगर एक नागपुर में से इलेक्ट होकर आने वाले एमएलए यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं और वो देखते हैं, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम तो मुंबई में जन्मे हो ना, तुम्हारे पास क्या विजन है? सो आई थिंक दिस इज स्टूपिड, वॉट एवर कन्वर्जन दे आर डूइंग। बोलने को कुछ नहीं तो कुछ तो बोलना है। नो वन इज देयर टू, ऐसा बोल नहीं सकते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहाँ से आए, उनको क्या विजन है। उनका विजन आप खुद देख रहे हो। No, you have been doing fantastic work in your area, Rani Dwivedi ji. All of yours, right now, 60 lakh, 65 lakh viewers are watching this show, and we all wish from them, and from the channel that you're going to win. And our survey always says that you're going to win. So we are going to win a winner, Rani Dwivedi Nigorji, and 2026 Mumbai elections. Rani ji. एक ही बोलना चाहूंगी, लाडली बहन हूँ, लाडले भाई हूँ, लाडली बहन हूँ देवेंद्र फडणवीस जी की, और आज जो भी जनता आपके साथ देख रही है वो भी लाडली बहनें हैं। भारतीय जनता पार्टी को और महायुति को सत्ता में आने दीजिए और मुंबई का विकास होने दीजिए। दिस इज व्हाट मैसेज आई एम गिविंग एज अ स्पोक पर्सन टू माय व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। Nation now always think that you already won because the survey says that you're going to win. You've been hardworking, you got a vision, you got a plan for ward number 13, and we hope all the best for you. Rani Dwivedi Nigorji. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. As we always say, Mumbai 2026 election. Just Prakash said there has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. If the economic and political systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. One, we have a person who has a vision, Devendra Fadnavis ji, who says that we are going to take 27 out of 29 corporations, and BJP is going to score the maximum of the 27 corporations, and mayors they will be having of the BJP, the 27 corporations that they are going to win. That's all where this BMC 2026 election is concerned. We will come again with more candidates who, their plans, their agendas, their roadmap for the city and how the city is going to benefit from them. That's all from Pradeep Nambiar. We'll come again with more candidates. Till then, bye for now.